साथ में वो सर्टिफिकेट्स और व्हाटएवर आईडी भी है। तो आप सबको मैं इनवाइट करता हूँ और इस पूरे सेशन के क्लोजिंग कमेंट्स के लिए पहले मैं आप सबसे इनवाइट करता हूँ, किसी की कोई क्वेरी हमारे पैनलिस्ट हमारे एक्सपर्ट्स के साथ है तो 5 मिनट्स फॉर यू, हम बात कर सकते हैं इसके ऊपर, प्लीज। Where's Dr. Khalua? He's just left. Okay. I think just to get a perspective, we talked about 100 million being the kind of revenue that we saw for artists coming on, visual artists last year, and kind of focused more on Indians staying overseas. I just wanted to get a feel because we see a lot of international patrons who love Indian art, and they are the ones over a period of time they are collecting, and they have their own communities of people, be it in the US or in other countries, as you had participated, or Dr. Now you've been seeding the market with what you shared in your presentation in Germany and other markets for a long time. So can you share a bit more about that community of our art going into international homes and how that would be something that should increase rather than just focusing or catering to an Indian market? I personally feel, and maybe I'm in a minority, that rather than at this stage of my life, I'll be 70 this year, I value public collections more than individual collectors, because individual collectors के साथ क्या होता है that the next generation may say this is rubbish, you know, and they'll either throw it away or tuck it away in some store. So where public collections go, our work is in very few museums abroad, very few, and in India also, unfortunately, how many museums of modern art do we have? Maybe we have only 5 or 6. So such a large country. So when Düsseldorf Museum acquired my work, I gone there accidentally for some show in London, and I realized छोटा सा शहर में 5 museums of modern art, or even in other cities, you know. So within the country, my focus is more, that's why I offer my work for even 1/10 the price to museums. So rather than individual collectors, I prefer being in, you know, where after me the work will survive. That's every artist's dream, that life is limited, but work survives in public collections. And what about international museums? As you said, you seeded it in a few. Any ideas or any plans of how you could expand that footprint into other countries, That is into up museums? to our government, you know. If they send more shows abroad to important venues, not just Indian Eye Commissions, because I know that, you know, a lot of exhibitions go to India House in London, nobody bothers about them, you know, but to important venues, because we have hosted a lot of important international exhibitions in NGMA. But it is not reciprocal. You know, that museums of contemporary art should also host Indian exhibitions. Actually, you know, in our country, I'm sorry to say, there is no permanent, you know, the norms of the, you know, the things कि हमने काम को कलाकारों को जो हमारे सारे कलाकार हैं इंडिया के, always look at the, you know, दूसरे कंट्री के लिए हम डिपेंडेंट होते हैं। जब भी हमारे क्यूरेटर्स होते हैं, हमारे जो गैलरीज पीपल हैं, इवन आर्टिस्ट ऑल्सो, हमेशा उनको बाहर ही देखना पड़ता है कि हमारा काम कहाँ पे जाएगा। उसका एक बड़ा कारण है कि इंडिया में अभी ऑक्शन हाउस जैसा कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं है। मैं जब ललित कला अकेडमी का स्टिल मैं जीसी मेंबर हूँ वहाँ भी, और लास्ट जब परचानी साहब चेयरमैन थे उस समय मैं कई बार बहुत फोर्सली इस बात को रखा प्लेटफॉर्म पे, जीसी मीटिंग के प्लेटफॉर्म पे, कि ललित कला हैव यू नो द ह्यूज कलेक्शन ऑफ द आर्टिस्ट। हर साल उनके कितने कैंप करवाते हैं, फ्रॉम द हुसैन टू यू नो माय सेल्फ, एंड आफ्टर दैट जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला था उसके 3 साल के बाद एक उन्होंने एक 50 साल का जो सोन देखा था, तो मैंने उनकी कैपेसिटी को देखा है, मेंबर ऑफ द जीसी मैंने उनकी कैपेसिटी को देखा है, दे हैव ह्यूज कलेक्शन बट सो बैडली ट्रीटेड, यू नो। मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए, लेकिन we all are, you know, belong from the artist community as well as the, you know, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आई नॉट एनजीओ में नहीं कर सकता ऐसा काम, एनजीओ के मैंडेटरी में नहीं है, और दैट टाइम आई एम नॉट हैव कैपेसिटी ऑफ द एनजीओ में चेयर। तो मैंने सजेस्ट किया था कि एक ऐसा ऑक्शन हाउस डेवलप करना चाहिए ललित कला का, उससे हमारे बहुत सारे कलाकारों का भला भी होगा, उनको एक्सपोजर भी मिलेगा, उनको प्लेटफॉर्म भी मिलेगा।
As we know about the कि जब तैयब मेहता का 100 करोड़ का एक काम गया तो तैयब मेहता को everyone know about the तैयब मेहता that before nobody बहुत कम लोग जानते थे और उसके बाद हुसैन साहब को भी सोचना पड़ गया कि क्या वो सब स्टोरी हम जानते हैं, ठीक है ना। तो लिखकर को करना चाहिए ऐसा काम, पेपर पे आया कुछ हुआ, मे बी फ्यूचर वो कुछ डेवलप हो जाए, लेकिन एज गैलरी पीपल बहुत सारे जो आर्ट कलेक्शन करने वाले लोग हैं, मेरा अपील है उससे कि हमें इंडिया में इस तरह के ऑक्शन हाउस डेवलप करने चाहिए ताकि आर्टिस्ट को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले एज वेल एज द एक्सपोजर मिले, यंगस्टर को मिले। और थैंक यू टू मैडम गार्गी कि आपने मुझे पॉइंट आउट किया, मैंने कुछ छोटे से काम किए जरूर आने के बाद में। अब मे बी ऑल अवेयर अबाउट द विकसित भारत कैंप, फर्स्ट टाइम एनजीएमए कैन कंडक्ट द यू नो वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिस्ट कैंप for the eminent artists to contemporary artists as well as the students also। 10 से 12,000 कलाकारों को एक साथ बुलाना और उनको फिर एक साथ विकसित भारत को पेश करना। विकसित भारत नॉट कोई ऐसा कह सकता है इट्स द पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, बट विच आई फील कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर नेशन एक्चुअली। एवरीवन वांट टू बी विकसित भारत, हमें होना है, आर्टिस्ट क्यों पीछे रह सकता है। तो मुझे लगा कि एज यू नो डीजी एनजीएमए आई हैव रिस्पांसिबिलिटी कि हमें कलाकारों के दृष्टिकोण से विकसित भारत को देखना चाहिए और मल्टीपल लेवल आर्टिस्टों के साथ देखना चाहिए। एवरेंट आर्टिस्ट किस तरीके से देखते हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट किस तरीके से देखते हैं, स्टूडेंट्स चिल्ड्रन किस तरीके से देखते हैं। इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम पूरे देश से 60,000 लोगों को यूनिवर्सिटी से लेके और स्टूडेंट्स तक केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यार्थियों तक वर्चुअल हमने उनको जोड़ा एक साथ प्लेटफॉर्म में, और सबने विकसित भारत को स्वप्न को देखा अपने कैनवस पेपर और ऑब्वियस ये चूंकि प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है और हम सब मानते हैं कि ये हम सबका कर्तव्य है एज ए इंडियन कि हम उस दृष्टिकोण को अपनाएं और हम वर्ल्ड वाइड अपने आप को कंप्लीट कर सके। इसलिए मिनिस्ट्री के 2 इम्पोर्टेंट मिनिस्टर पीयूष गोयल और विदेश मंत्री जयशंकर जी हमारे साथ थे। सभी कलाकारों ने देखा, समझा और फर्स्ट टाइम एनजीएमए ने कुछ एक अमाउंट के तौर पे भी उन्हें दिया और सबको एसोसिएट किया। सो दिस इज द अचीवमेंट ऑफ द एनजीएमए। थैंक यू सो मच। अगर मुझे 1 मिनट दिया जाए तो मैं 1 मिनट में अपनी बात करना चाहती हूँ, हिंदी में बोलूंगी, क्योंकि अगर इस मेंटल स्लेवरी से हम नहीं निकल सकते, हमारा अपना नेशनल ड्रेस होना चाहिए, अपना खाना होना चाहिए और अपनी भाषा होनी चाहिए। 75 साल पूरे हो गए और हम हिंदी में बात करने से क्यों कतराते हैं? मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ, मैं बोलूंगी नहीं। पहली बात, भारत जब ये टॉपिक इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में और एक सेमिनार होना चाहिए। जब तक हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेंगे, हम कुछ भी भारत को विश्व के सामने नहीं रख पाएंगे। जब मैं रिटायर हुई, मैं एक ब्यूरोक्रेट थी और मगर एक जुनून भी था आर्ट का, तो रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि मैं वो काम करूं जो मैंने अब तक नहीं किया है। मैं रतेलिया गांव जो सांगानेर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान में, मैं वहाँ गई, वहाँ 10 दिन उन गांव वालों के साथ रही और मैंने टेक्सटाइल पे जो कि हाथ चरखे से काटा हुआ खादी था 200 मीटर लेकर उस पर नील रंग से काम किया है, जो कि प्लांट से ही निकाला गया था। रतेलिया में मैं इसलिए नहीं कि ऐसा एक टेबल था वहाँ पर एक किसी के कार्यशाला में, ताकि मैं उस पर 200 मीटर का काम कर सकूं। मैं पिछले 1.5 साल में उस एग्जीबिशन को 11 जगह दिखा चुकी हूँ। जो उस आपका शक्ति का शो है उसमें भी मेरा टीम का उसी का है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उस शो को मैंने निफ्ट के पटना, दिल्ली, बॉम्बे और गांधीनगर के स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है। वहाँ के स्टूडेंट्स चूंकि विजुअल आर्ट से उनका ज्यादा ताल्लुक नहीं रहता है, बहुत जरूरी है कि हम अपने आर्ट को आम आदमी तक पहुँचाएं और सबसे अच्छा सोर्स होगा स्टूडेंट्स तक पहुँचाएं। इसके अलावा मैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी उसको लेके गई और स्टूडेंट्स के साथ मैं वहाँ पे डेमो भी करती हूँ, टेक्सटाइल पे काम करके उनको दिखाती भी हूँ। मेरा इस समय मेरे लाइफ का मिशन यही है कि मैं आर्ट को हर आदमी तक पहुँचाऊँ और मेरा आर्ट इतना सिंपल होना चाहिए कि हर आदमी उसको समझ सके। एक एग्जीबिशन जो ऑर्बिट में इंडिया पैवेलियन में हुआ, एक दिन में 6-7 हज़ार लोग उसको देखने आते थे
जब तक हम आम आदमी से आर्ट को नहीं जोड़ेंगे तब तक न देश में और न विदेश में हमारी कोई जगह नहीं बन पाएगी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। Thank you so much. संजीव सर, very truly, मैं जो वक्त में था उसमें मैं 2 लाइन को जोड़ना चाहता हूँ। That's why NGA में कोई जरूरत पड़ सकती है जैसे एग्जीबिशन के लिए, और आज ये समय है कि हमें फिर से पीछे जाके और आगे तक देखना पड़ेगा। जब कोई बड़ा टारगेट होता है तो समटाइम अपने आप को पीछे लाना होता है, और इस द टाइम कि हमें पीछे मुड़ के फिर आगे की तरफ देखना चाहिए, जिसको हमने बहुत करीबी से छोड़ रखा है। और इस प्रकार के सेमिनार या व्हाटएवर डिस्कशन बहुत आवश्यक हो जाता है नेशनल लेवल पे बात करने के लिए और आप जैसे बुद्धिमानों के साथ शेयर करने के लिए। यस मैम। मैंने इन दोनों जो लीडिंग आर्टिस्ट हैं, मैंने देखा कि काफी मेहनत की हुई है ना, जैसे खूब सोच के या टाइम भी डिवोट करके, और मुझे ये करना कि आप पहले कुछ रफ बना लेते हो या बहुत मेहनत की हुई है। जो भी हम पेंटिंग जब मैंने कैनवस पे करना होता है तो पहले जैसे मैंने बताया मैं लॉग ऑफ वुड पे काम कर रही थी, तो लॉग ऑफ वुड को सोचा मैंने और उसकी इमेज को मैंने अपने सामने भी रखा, और फिर उसमें जो क्या बनाना है रोज कैनवस के सामने बैठ के उसको मैं सोचती हूँ कि अब मुझे इसमें ये कुछ और ऐड करना है। जैसे एक बच्चे की जर्नी है, उसी तरह से स्टार्ट किया उसको। तो और कई बार मैंने लेंस जो होता है मैग्नीफाइंग लेंस लेके भी काम किया, क्योंकि इतना डिटेल काम करना एक स्पेक्स के साथ नहीं हो रहा था, तो आई स्टार्टेड यूजिंग मैग्नीफाइंग लेंस सम टाइम टू गिव द डिटेल्स। मैं बहुत जल्दी 2-3 बजे सुबह उठ जाती हूँ, और वो अमृत वेला, वो स्पिरिचुअल टाइम ऐसा था कि करीब 15-20 साल पहले से ये मेरा रूटीन बना कि 2-3 बजे जैसे मुझे कोई हिला के उठा रहा है ऐसे। हाँ, ये ऊपर से ही है जो भी है, जो कबीर ने कहा, जैसे मैंने कहा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो जो वो ब्लेसिंग आ रही है उस समय, वो फ्लो, ऐसे क्रिएटिव आइडियाज उस समय आते हैं कि उस धारा में अगर मैं ना बहूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप से जस्टिस नहीं कर रही। तो उस समय मैं पोएट्री भी लिखती हूँ और मैं ड्राइंग भी करती हूँ, और जैसे ही सनराइज होने लगता है उस समय ऐसा होता है कि जैसे रचयिता ऊपर वाला अपनी रचना कर रहा है, रंग बिखेर रहा है, तो वो रंग मैं उस समय अपने काम में सोचती हूँ। तो जो ड्राइंग है वो तो जल्दी हो जाती है, लेकिन जो रंग है वो धीरे धीरे कॉफी पीते पीते पेंटिंग से बात करते करते बनते हैं। तो धीरे धीरे ओवर कप्स ऑफ कॉफी वो पेंटिंग बनती है। कार्की की मम्मी है ये, उनको कहना है हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि 5000 साल पुरानी सभ्यता हमने अपनी रगों में हमारे बहती है, तो इसलिए आपको कार्की को प्रोड्यूस करने में भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमें भी नहीं मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि हमने वो सभ्यता इनहेरिट की है। संजीव जी, आपको एक सुझाव है जी। चाइना में 90% एक हान ट्राइब है, और उन्होंने 27% वर्ल्ड का आर्ट मार्केट कैप्चर किया है। इंडिया में आज 16 को उसके बाद कल्चर बदल जाता है, आर्ट भी बदल जाती है, बट हम लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। सो व्हाई डोंट NGM में क्रिएट ए ह्यूज वेबसाइट जहाँ हर आर्टिस्ट अपने वर्क को 1000 रुपया दे करके अपलोड कर सके, एंड आर्टिस्ट कैन से कि मेरा ये प्राइस है, तो मेरे पास ये काम है, मेरा ये प्राइस है, दिस इज व्हाट आई वांट टू ऑफर, और उसमें अपलोडेड रहेगा तो एक तो आर्टिस्ट का ऑटोमेटिकली कॉपीराइट हो जाएगा, दूसरा ये रहेगा कि जिसको PIO को इंडियन को कहीं भी खरीदना है वो कम से कम देख तो सकता है कि इंडियन आर्ट क्या क्या अवेलेबल है। और जो अपने जितने हमारे ये जोनल कल्चरल सेंटर हैं उनसे ये कहा जाए कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने इलाके में डिस्ट्रिक्ट वाइज एक एग्जीबिशन करें, और जो आर्टिस्ट वहाँ पर लोकल अपनी आर्ट ला सकते हैं, हर साल में 2-3 एग्जीबिशन हो, एक जिले में, फिर अगले जिले में, अगले जिले में रोटेट करती रहे एग्जीबिशन,
ताकि आम आदमी उसमें आके देख सके। अब इंडिया आर्ट फेयर होता है, उसमें 1200 रुपए की तो टिकट है, उसमें कौन घुस सकता है? आम आदमी नहीं घुस सकता। तो जिलों में आर्ट फेयर होने चाहिए जो कि नॉमिनल फेयर में हो, और अल्टीमेटली वो जोनल कल्चरल सेंटर जो है वो उस आर्ट को इवेल्युएट करके प्राइसिंग को भी बता सकते हैं कि ये प्राइसिंग ठीक है कि नहीं, ताकि कॉमन मैन हु इज इंटरेस्टेड इन आर्ट, हु वांट्स टू बाय आर्ट, उसको ये भी पता लग जाएगा कि आर्ट जेन्युइन है, आर्टिस्ट जेन्युइन है, एंड आई कैन बाय दिस प्राइस आल्सो गुड। So your good name? I think I am Sunil Gulati. I was with the government. I retired from the government, but this is something I have always. So thank you so much. You give me a chance to be. I'd like to add a sentence to it. I think what the important thing what he's mentioning is there is the subtle aspect of business of art. One should not be ashamed of the business of art. very important. This is a very important aspect which a lot of our nodal central national bodies they are shying off. Thank you so much. आर्टिस्ट को आर्ट करनी आती है, बिल्कुल बेचना नहीं धन्यवाद आता। जी, धन्यवाद आपका, आपने मुझे चांस दिया कुछ बोलने के लिए। सर प्लीज, चांस इसलिए मैं ले रहा हूँ इस चीज का क्योंकि आपका सवाल भी बड़ा जेन्युइन है और मुझे कुछ बोलने का इसलिए क्योंकि मेरे पास कुछ आइडिया है। व्हेन आई जॉइन्ड द डीजी हियर, सो मैं ये नहीं बोलूँगा कि पहले डीजी में काम नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारा वो प्रॉपर्टी है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यस, आई हैव सम न्यू आइडियाज अबाउट द थिंग्स, और उसके मैं बहुत डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं हिंट्स जरूर देना चाहता हूँ क्योंकि जब भी मैं आया तो यू नो अबाउट द कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी के काम आते हैं और बहुत सारे मेरे अपने थॉट प्रोसेस है, बहुत सारे हमने विजन लेके आया हुआ हूँ मैं, मुझे करना है कि मैं अपने देश के लिए करना है, एक्चुअली नेशन के लिए करना है। पहले जो प्रैक्टिस था कि वेरी फ्यू आर्टिस्ट आर देयर ऑक्युपाइड द यू नो संस्था, चाहे वो ललित कला हो या एनजीएम हो व्हाटएवर। तो फर्स्ट तो ये हमें सोचना चाहिए कि एनजीएम हो, ललित कला हो, व्हाटएवर कोई भी ऐसा सोशल बॉडी है वो पूरे नेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नॉट ओनली द फ्यू आर्टिस्ट। 3 महीने तक किसी का एक शो चल रहा है और पब्लिक बोर हो गई, फिर भी वो शो चलना ही है क्योंकि 3 महीने उनको हमने दे रखा है। तो एक तो ये प्रैक्टिस हमें छोड़ना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज की जो मैंने फाइंड आउट किया, मुझे फील हुआ कुछ ऐसे चीजें आई तो, क्योंकि हमारे पास अभी डेटा ही नहीं है पूरे इंडिया का। ललित कला के साथ मैंने काम किया है, जिसी में मैंने बताया वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है। अगर कुछ भी ऐसा इवेंट आता है जब आर्टिस्ट को एसोसिएट करने का टाइम आता है तो वेरी फ्यू पीपल आर यू नो सराउंडिंग द दिल्ली या दिल्ली एनसीआर ओनली, पूरे इंडिया का खत्म हो जाता है यहाँ पे। जब मैंने विकसित भारत किया तो मैं इसलिए सक्सेस कह सकता हूँ क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम द एकेडमी। मैंने देश के 4 यूनिवर्सिटी का पढ़ाया है 10-10 साल, देश से बाहर भी मैंने पढ़ाया है और मेरे देश के करीब सारे वाइस चांसलर और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से मेरे संबंध है पर्सनली एज एकेडमिशियन, एज आर्ट प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट। इसलिए मैं सक्सेस कर पाया उसको। अदरवाइज 6 दिन के अंदर 10,000 से 12,000 लोगों को इकट्ठा करना, पूरे देश से 60,000 लोगों को जोड़ना आर्ट कम्युनिटी के, इट्स नॉट जोक। तो वो कैपेसिटीज का क्या रिलेशन था। सो ये तरह के एनजीएम हो या फिर ललित कला का अपना पर्सनल चेयर का रिलेशन कैसे है, आज की जरूरत है। इसलिए कुछ मैंने रोड मैप डेवलप किया है जो आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि मुझे पूरे देश से हर वो एक आर्टिस्ट का डाटा मुझे चाहिए जो या तो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल या ऑल इंडिया लेवल पे उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तभी मैं उनके लिए कुछ पॉलिसी डेवलप कर सकता हूँ, कुछ प्लान कर सकता हूँ और देश के उन कलाकारों तक, अंडमान निकोबार तक और उसके बाद यू नो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम पहुँच सकते हैं। अदरवाइज मणिपुर आर्टिस्ट को कितने लोग जानते हैं यहाँ पे, अंडमान के कितने आर्टिस्ट को आप जानते हैं, किसी को कोई मिलना ही नहीं है। आज से 75 साल नहीं मिला, आज भी नहीं मिलेगा, आने वाले 3 साल मेरा भी जाएगा नहीं मिलेगा। सो कुछ इस तरीके से प्लानिंग हमें करना ही चाहिए जिस पर मैं काम कर रहा हूँ साइलेंटली, और हो सकता है कि आने वाले समय में विकसित भारत जैसा कुछ और बड़े प्लान हो और कुछ इंपॉर्टेंट सीरियस आर्ट के ऊपर हम बात कर सकते हैं और उन आर्टिस्टों के लिए कुछ करने का मौका मुझे मिलेगा। तो दिस इज द पॉइंट। मैं भी अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी क्योंकि मैं भी 1970 से काम कर रही हूँ इस फील्ड में और मैं आई गेट इंस्पायर्ड बाय आर्ट जो मेरी रगों में है और मैंने काफ़ी शोज़ किए हुए हैं, नियरली 50 सोलो शोज़ किए इंडिया एंड अब्रॉड। तो वो मुझे एक ताकत देते हैं अपनी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आर्ट एक ऐसी चीज़ मीडियम है जो आपको ठीक करती है और ताकत देती है। तो उसके थ्रू, और ना कोई हमने कभी किसी से कोई ग्रांट नहीं लिया, कभी किसी से कनेक्ट नहीं किया, इंडिपेंडेंटली आई कुड डू दैट। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि पेंटिंग में जो जब सबसे पहले मैं अमेरिका गई तो मुझे सब लोगों ने पूछा कि तुम किस टाइप की पेंटिंग करते हो।
तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपने कल्चर को तो ज़्यादा जानती नहीं हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मैं गई तो पूरा स्टडी करके तैयार करके पूरी एग्जीबिशंस करने के लिए गई और लोगों को बताया, इंटरेक्शन किया उन लोगों के साथ कि दिस इज आवर कल्चर। सो दैट वाज माय बेस एंड आई फील सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि जो स्पिरिचुअलिटी मेरे में आई है बिकॉज ऑफ आवर इंडियन कल्चर। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है और मेरी पेंटिंग्स अभी भी काफी म्यूजियम्स में गई हुई हैं इंडिया में। जी हाँ, मैं वैसे बहुत लो प्रोफाइल काम करना चाहती हूँ लेकिन फिर भी That's why I told you that ये बहुत जरूरी है कि ऐसे जो संस्था है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके ऊपर पूरे देश का है वर्ल्ड वाइड इंडिया में वर्ल्ड वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनको एटलीस्ट उनके पास एक अच्छा सा डिजिटल और फिजिकल फॉर्म में लोगों की जानकारी तो होनी ही चाहिए, उसके बाद में कुछ काम कर रहा है। Yes, please. An artist actually. Let it be immense. There is a, and this my humble request to the two guys. One is the Gargi, she was a curator, and another is Mr. Khatwa, but he's not here. When you look into the Santa Fe, the city developed by one of the great artists and great aesthetician, her name was Jojo Keefe. And then Jojo Keefe create such a box between the indigenous and non-indigenous. Till today in the Santa Fe, there is a one day in the week that indigenous people come and they sell their small artworks and craft. They don't speak Spanish. They can speak the Spanish, but they don't speak. They stick with their Nahuatl. Nahuatl is their original language. Before work on the Santa Fe, you have to work on this lady first. Then you will understand what is the balance between the indigenous or the tribal art and the contemporary art. That center is not for the painter only, that center for the Hollywood actor and actress. That center for the architect. Their architect was very different. There was a colony. Even that Nahuatl people, that the indigenous people, they go to the Albuquerque in the Tamil studio. That this introspective analysis is very important to go to that way. It needs academic work on this. And introspective analysis of the Jojo Keefe's work. This will the concrete, what Mr. Khatwa says, he is right in that way. What? The Godard goes to the New York, Godard go to the California, rolls and rolls. Some of the contemporary Indian artists have done this business. There is no problem to doing the business. But how this Jojo Keefe, she balanced the both things in such an intelligent way. And when you look her artist statement can be one of the manifesto for this to balancing thing. I'm sorry to say like this, but this area should be worked if you want to develop. That K.C. Panikar has done in Cholamandal. yes, Cholamandal. K.C. Panikar has done. Even Tagore has done. He started with his painting at the age of 60. So we need a great academician work, how to balance it. Otherwise, Jangat Sham, the people will happen to the Jangat Sham. So my humble request to the Gargi ji, you have to work on this direction. You will be the great in that way. That's a beautiful observation. Georgia O'Keeffe Museum is a very important museum in Santa Fe. We have every intention of visiting, Yes. absorbing the Yes. philosophy and the motivation behind the work of Georgia O'Keeffe. Yes. Thank you so much for pointing it out. And I was in 3.5 years, I was in Mexico. I studied in Mexico. Can you please introduce yourself? My name is Savi Savarkar. Ravi Savar. Savi Savarkar. College of Art, Yeah. professor. And
Madam, I studied there. At Mexico? In Mexico, I was in the student of the San Academia de San Carlos. Amazing. He's a very powerful painter. Yes. Sabi is a very powerful painter. And I remember his early paintings were about so-called, you know, जो पीछे झाड़ू मानते हैं ना, from that community, कि OBC, call them Dalits, all his life he has painted those, you know, very passionate. Thank you so much, Professor Samal. Another things, madam, when I was in the Mexico, there was a lot of people who used to come from the Santa Fe, that area particularly of the California. California is a part of Mexico itself. And how the Spanish people, they colonized that things. And how the Indian president, they sold out the whole California to the America. You see that history. But indigenously, the way they are keeping their art is really they have that. That they have their national anthem, their own national anthem they have. So this part, Mr. Gargi ji, I have this is my humble request to you. This area, before doing this, the work should come, and introspective analysis is very important. Thank you very much. मेरा नाम नीरज शर्मा है जी प्लीज। और मैं सीनियर फोटोग्राफर रह चुका हूँ फोटोग्राफी में। अब प्रयास करता है, जिस वक्त मैं 50 साल का हुआ, मन में एक विचार आया कि कला ने आपको सब कुछ दिया, आपको पैसा भी दिया, नाम भी दिया, अच्छे लोग भी मिलवाए, लेकिन आपने कला को क्या दिया? वही कुछ सोचकर मैंने एक फाउंडेशन खोली, स्पीकिंग आर्ट फाउंडेशन, जिसमें हम अपकमिंग प्रॉमिसिंग एंड एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट को साथ लेकर चलते हैं। कोरोना टाइम में मैंने एक कॉफी टेबल बुक प्लान की कि जितने आर्टिस्ट अपने घरों में, क्योंकि उन दिनों कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा था, सुबह मैंने मेहनत करके आर्टिस्ट के सहयोग से किताब भी तैयार की। मैं आपके नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट गया, वहां पर, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप में हमें कुछ एक आशा की किरण नजर आती है। उन दिनों में वहां गया, मैंने कहा कि मुझे ये कॉफी टेबल को नगमा ग्राउंड में रिलीज करनी है। नहीं हो पाया, उन्होंने वैल्यू नहीं दिया कि हमारे यहाँ लिटरेचर का होता नहीं है। खैर व्हाटएवर। सेकंड चीज, मैंने एक आर्ट फेस्टिवल प्लान किया, दिलीप हितकारी सर बैठे हैं, जानते हैं। आईफेक्स में मैंने पिछले साल सितंबर एंड में एक आर्ट फेस्टिवल किया, जिसमें कि अभी हम जितने आर्ट फेस्ट देखते हैं या फेस्टिवल या फेयर्स, दे आर हाईली प्राइस्ड, 6 लाख 2 लाख 2.5 लाख इस तरह से वो खुद देते हैं। सिमिलर फैसिलिटीज मैंने 30,000 रुपए में दी, सिमिलर फैसिलिटीज। अब मैंने सेम फेस्टिवल करने की सोची है ललित कला ग्राउंड में। अप्रैल में सोचा था, एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। ग्राउंड इशू मतलब वेन्यू पार्टनर बनने के बाद भी मेरा अप्रैल तो निकल गया। सिमिलर मैंने अभी अक्टूबर के लिए प्लान किया है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि अगर इस तरह की संस्थाओं का फायदा क्या, लाइक जो हम जैसी संस्थाएं कुछ जन से सक्सेस कुछ करना चाह रही हैं और आप लोगों का सहयोग ना मिले, थोड़ा सा डिस्करेजमेंट मिलती है। मैं ये आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि बाई चांस अगर, क्योंकि ललित कला अकेडमी बोलती है कि मैं साहित्य अकेडमी अटैच हो गई, साहित्य बोलती है संगीत नाटक अकेडमी, हम तो एनओसी लेते लेते रह जाते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर आपसे, अगर अब हम हेड इंस्टीट्यूशन के नगमा में है, अगर ललित कला मुझे ग्राउंड नहीं देती तो क्या नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुझे वेन्यू देगा? Actually, this is not right platform to discuss this type of the questions or whatever, you know. We have to focus about our subject. This is another thing. You meet me the next time, or you know about the everyone have on mandatory. We also responsible, and we have bond for our mandatory also. As you all know about the mandatory of the NGMA, but yes, I'll try my best always to, you know, do something beyond the mandatory. इसलिए मैंने कुछ कर नहीं पाया है। Now I come to my point. एक मैं प्रोफेसर सभी के उसके ऊपर मैं करके इसको क्लोज करना चाहूँगा।
हम सब जानते हैं कि ग्रेट आर्टिस्ट पिकासो इज वेरी मच रूटेड ऑन देयर इंडिजिनस और व्हाटएवर, जो वहाँ का ट्राइब आर्ट से रहा है, वहाँ से लेके कुछ शायर, और जैसा कि मैंने कुछ को बताया, मैडम ने भी दिखाया। मोस्टली जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो अपने रूट से जुड़े हुए हैं, और उनके रूट से जुड़े होने के कारण अपने देश के, अपने मिट्टी की खुशबू को अपने कलाकृतियों में समाये हुए हैं, और शायद वो ताकत है कि विश्व स्तर पे भारतीय कला को, भारतीय समकालीन कला को हम उस रूप में दिखाने का प्रयास करते हैं, और एप्रिशिएशन मुझे मिलता है। हम सब एप्रिशिएट होते हैं अपने आर्ट वर्क के लिए, और ये भारत का ताकत है, और आज से ताकत नहीं है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जब हम सिंबलिज्म की बात करते हैं, हम जब अपने मैडम गार्गी ने जो दिखाई थी वेस्ट के कुछ चर्च को दिखाया, तो मैं सोच रहा था कि विद आवर कंट्री टेम्पल्स, साउथ के हमारे इतने इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है, क्यों नहीं आया, बट थैंक यू सो मच कि आपने उसको भी रखा है उसमें। और दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द इंडिया, जो हमारा रूट है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके प्रोफेसर के उस पर कहना चाहता हूँ कि आप सबको मालूम है, जैसा मैंने पहले भी चर्चा की है हजारीबाग ट्राइब आर्ट का, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं बहुत एसोसिएट हो रहा हूँ वहाँ से। व्हेन आई एम डूइंग पीएचडी फ्रॉम बीएचयू, तो मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ वहाँ पे, और मे भी आप लोगों से कुछ लोग जानते होंगे, एक बड़ा नाम है वहाँ पे, उन्होंने विदाउट में उनके नाम लेते हुए आपको कुछ एक एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि फिर बात कुछ और तरफ चला जाएगा। तो ही नॉट इंडियन एक्चुअली, वो दूसरे कंट्री से हैं, और वेरी मच अवेयर अबाउट द कैपेसिटी ऑफ द हजारीबाग ट्राइब। वहाँ पे वो जाते हैं और एक एरिया लेते हैं वो, और हजारीबाग ट्राइब ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग सूटे फूटे लोग जाएंगे तो शायद उनको काट के खा लिया जाएगा। अभी स्टिल दे आर नॉट कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं, और बिल्कुल ओरिजिनल ट्राइब उसको बोल सकते हैं, उसमें वो रहते हैं। हिंदी तो बहुत दूर की बात है, कोई भी ऐसा रीजनल भाषा भी जानते हैं, उनका अपना भाषा है, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ पे रहते हैं और एक बहुत बड़ा ये जंगल का लेते हैं, और उनको ये इच्छा था कि उस आर्ट को मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाऊँ और उस पर मैं काम करूँ। वो व्यक्ति को जाना बहुत मुश्किल है, जब हम इंडिया नहीं जा सकते तो बाहर की कोई जाना तो बहुत ही दुर्लभ है, वो तो बॉर्डर ही क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन वो इन प्रकार के कुछ रिसोर्सेज अपनाते हैं और एक ट्राइब वुमेन आर्टिस्ट से शादी करते हैं। शादी करने के बाद क्या करता है, उनसे 2 बच्चे होते हैं, एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। उस लड़की को भी फिर से अगेन आर्टिस्ट बनाते हैं वो धीरे धीरे ग्रेजुअली, और उस वुमेन आर्टिस्ट के जो ट्राइब आर्टिस्ट था उसके जरिए उन कलाकारों के बीच में जो प्योर ट्राइब आर्टिस्ट है उनके अंदर हो जाते हैं, और फिर उनको एक एक करके उस जगह से अपने जगह पे ट्रांसफर करते हैं। लेकिन उनको सरवाइव करना बहुत, उनको रखना बहुत मुश्किल है। उनके आर्ट को शोकेसिंग तो बहुत करने की दूर बात है, उनके आर्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि भाषा अलग है, सब कुछ अलग है, और उनके परिवेश और रहने का तरीका भी अलग है। फिर उनके अकॉर्डिंग जैसा वो रहते हैं वैसा अकॉर्डिंग पूरा का पूरा एक एरिया डेवलप करते हैं। वही जाता जैसे हम गेहूं को पीसते हैं, और सारी पूरे जो आर्किटेक्चर से लेके ईच एंड एवरीथिंग जो उनके लाइफ स्टाइल का पार्ट है उसको जंगल में क्रिएट करते हैं, और 1 बाय 1 करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट को वहां से लाके वो रखते हैं, एसोसिएट करते हैं, और उनसे उन जगहों पे प्रैक्टिस करते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, और फिर उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू करते हैं, फिल्म बनाते हैं, उनके आर्ट को डेवलप करते हैं, और टाइम टू टाइम दूसरे कंट्रीज में उनको बाय फ्लाइट लेके जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में, बहुत बड़े म्यूजियम्स में उनके कैपेसिटी को शोकेसिंग करते हैं, उनके द्वारा बनवाते हैं वो पेंटिंग। हमारे इंडिया में तब तक बहुत लोगों को मालूम भी नहीं था कि हजारीबाग आर्ट का क्या कैपेसिटी है। जब मैंने पीएचडी करना शुरू किया तो मैंने उनके द्वारा ही, मुझे भी वही रिसोर्सेज अपनाना पड़ा, और उनके द्वारा मैं जाके वहाँ पे चीजों को समझा जाना, और फिर मैं कैपेसिटी देखा। सो दिस इज द लोग बाहर से देख के हमारे आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, नॉट ओनली अप्रिशिएट करते हैं, उसको शोकेसिंग करते हैं, और हमारे लेवल पे, हमारे गवर्नमेंट लेवल पे, या हम सोसाइटी के लोगों के लेवल पे, या जो हम इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो आर्ट फील्ड में, हमने क्या किया उसके ऊपर काम, ये एक बड़ा क्वेश्चन हमेशा रहा है। मुझे लगता है कि जैसा कि एक बंधु ने अभी अपनी व्यथा जाहिर की, तो मैं इस पैनल के जरिए
जो आज का जो डिस्कशन है उसको अंत करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हम संस्था के जो प्रमुख हैं उनकी भी एक दायित्व है कि हम उन ट्राइब आर्टिस्टों को, उन इंडिजिनस आर्टिस्ट को भी कुछ ना कुछ करके हम अपने म्यूजियम में, हम अपने आर्ट इंस्टीट्यूशन में ऐसा प्लेस, ऐसा रिस्पेक्ट जरूर दें ताकि आने वाले समय में लोगों को ये फील हो कि ये भारत का ताकत है, ये रूट है विजुअल आर्ट्स का, और इसको हमें बार बार देखना चाहिए। नहीं सिर्फ हमें देखना चाहिए बल्कि जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो लोग आते हैं उनको भी देखना चाहिए और उससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए और हमारे ताकत को फील करना चाहिए। सो नाउ आई हैव अ प्लान फॉर द एनजीएमए कि मैं एक छोटा सा कोने जो हमारा एडमिन बिल्डिंग है वहां से मैं शुरू करने वाला हूँ इसको लेके, और एक प्लान किया है मैंने कि मैं उन कलाकारों को जिनको मैं जानता हूँ काइंड ऑफ द हजारीबाग ट्राइब आर्ट एंड द अदर्स, उनको लाके मैं एक प्लान स्टार्ट करने वाला हूँ कि जब भी कभी आप आएंगे तो आपको फील होगा कि एनजीएमए मॉडर्न आर्ट गैलरी में भी उस तरह की चीजों को हम देखने की अवसर हमें प्राप्त होता है। और मुझे लगता है कि दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एनजीएमए और एज वेल एज द गवर्नमेंट सेक्टर। थैंक यू सो मच। आप सब आए यहाँ पे, और सबसे जो इस चेयर के लायक शायद नहीं हूँ मैं, फिर भी आपने मुझे ये अवसर प्राप्त किया, अवसर दिया आपने मैडम गार्गी और आप सबने मुझे पेशेंसली सुना और मुझे कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया, और साथ ही मैडम और जैसे एक्सपीरियंस लोगों के साथ हमें शेयर करने का मौका दिया। बहुत